Sorry for the interruption. Siddharth was asking for something. Well, coming back to what we were doing, origami. So either we have these special colored square, perfect shaped square papers, or if you have an A4 sheet, then you can fold it like this, and you can cut off the rest of the place, and then you can make it A4 Square. So this A4 we are converting into a square again. Okay, so and then you can make the same. Well, so you have the orange paper and I have the green. Let's keep the rest of the things aside so that the viewers can see what we are making. Okay, तो आप लोगों को बताऊं कि ये जो पेपर है स्क्वायर पेपर, इस पेपर में there are 4 corners, as you can see, Ridhima, right? We have 4 corners, and this method is called corner to corner method. There are 2 schools of methodology rather in origami. One is half, and one is corner to corner. So we will touch this corner to the other corner like this. Okay. We will make it a perfect triangle like this. I'll repeat the step. हमने क्या किया, हमने इस कॉर्नर के साथ इस कॉर्नर को मिला दिया, और उसके बाद with the impression of your thumb हमने ये फोल्ड किया और हमारे पास ये ट्राइंगल बन गया. Okay, so this is step 1, and the step 2 is again what we are doing. This corner we are merging with the corner at the top like this. Yes, sir. So you can show it to the viewers कि हम क्या कर रहे हैं. हमने ये दूसरा कॉर्नर बनाया. All right. And after this, again, I'm just repeating the step what we did. We had a square paper. We fold it. The first fold is like this, and the second corner to corner is like folding it this way. And now we have 2 empty buckets. ये 2 खाली जगह है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहला वाला जो हमारा खाली जगह है उसमें हम लोगों ने इस तरह से इसको थोड़ा सा ओपन अप किया. कोन शेप, ऑफ कोर्स यू आर राइट रिद्धिमा, हमने कोन शेप की तरह इसको ओपन किया, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ये इंप्रेशन बनाया. यस, ऑफ कोर्स. एंड अगेन इन द सेकंड स्टेज व्हाट वी आर डूइंग, हमने इसको we just put the finger this way, and हमने again इस corner को दूसरे corner के साथ merge कर दिया. All right, this is what we have, a perfect square. Okay, so it's very simple. Again मैं आपको दोबारा बता देता हूँ. हमने पहले ये पहला fold किया था, दूसरा fold हमने ये किया था, उसके बाद तीसरे fold में हम लोगों ने क्या करा, ये एक बीच में से न्यू किया, फिर हमने पेज को पलटा, और एक और इंप्रेशन बनाने के बाद हमने इसको बीच में इस तरह से फोल्ड किया. All right, so now we have a perfect square. Now there are 2 sides of it. One is the open side and the other is the top side. Okay, so when you see this bird, what happens is the bird has got a top side which is जो इसका पीठ है, बर्ड का जो पीठ वाला एरिया है, और एक एरिया है जो नीचे का एरिया है. सो इसलिए यहीं से ही ये चीज़ बनेगा. तो आप ये समझ लीजिए कि इसको करते हुए स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट है. स्टेप को करते हुए जो कवर्ड वाला हिस्सा है ये ऊपर की तरफ रहना चाहिए, ये उसका पीठ बनने वाला है, और ये जो हमारा ओपन साइड है जिनमें से इसके बीक और इसका टेल निकलने वाला है और इसके पंख निकलने वाले हैं, वो साइड नीचे की तरफ है. ओके, नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू मेक इम्प्रेशंस. हम क्या करेंगे कि कुछ ये पेपर के ऊपर हम लोग कुछ इम्प्रेशंस क्रिएट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम ये हम फोल्ड कर रहे हैं. यस, सी while making the fold, let me show you Ridhima. While making the fold, this should be from corner to the other corner. There should not be any mistake. ये देखना पड़ेगा हमें कि हम इसको corner to corner कर सकें like that. Okay, so this is, and then repeat the step. Okay,
रिपीट दिस स्टेप एंड देन ये हमने ये टॉप से भी फोल्ड कर लिया। ये हम सिर्फ इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं दोस्तों। हम सभी नन्हे दोस्तों को ये बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक इंप्रेशन, ये डायमंड शेप्ड इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए हमने ये फोल्ड किया, फिर दूसरा फोल्ड किया और तीसरा फोल्ड किया। रिमेंबर, फोल्ड करते समय आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका कवर्ड वाला हिस्सा है वही ऊपर है और नीचे ओपन वाला हिस्सा है, अदरवाइज ये पूरा का पूरा एक डिफरेंट चीज बन जाएगा। वो भी मैं बताऊंगा इन आवर नेक्स्ट स्टेप। सो आफ्टर डूइंग दिस then just flip it and repeat the process on the other side as well. Okay, so we are repeating the process on the other side as well, like that. We are trying to make it a perfect angle. और ये जो टॉप है इसको आप देखिए कि एक बार हमने इधर मोड़ा, एक इंप्रेशन क्रिएट किया, फिर जब हम दूसरा वाला हिस्सा कर रहे हैं तो उसमें हमने इसको दूसरी तरफ भी मोड़ दिया ताकि इसका इंप्रेशन दोनों तरफ ही रहे, like that. Okay, and after we make this we will open up these sides. Okay, इस जगह पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्क्वायर पे हम वापस आ गए हैं, लेकिन हमने सिर्फ ये इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करी फ्रॉम ऑल साइड्स। ओके, और अब एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, ये समझना थोड़ा सा जरूरी है, बिकॉज इसी से ही यू कैन इधर मेक इट और ब्रेक इट। सो आई नो, यू नो, इन बिटवीन कई बार हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर हम किसी चीज़ को छोड़ देते हैं कि नहीं हो सकता, बट डोंट डू दैट। दिस इज अ वेरी सिंपल स्टेप। आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन कि उसमें करना क्या है, और बस कुछ ही 2-3 स्टेप्स के दूरी पे हैं हम लोग। जैसे ही वो स्टेप पूरे हो जाते हैं एंड वी वुड हैव दिस वंडरफुल बर्ड। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज जस्ट सी, यू विल आल्सो फॉलो मी। ये हमारा एक ओपन हिस्सा है, इस हिस्से को हम ओपन करें, और ये जो यहाँ पे एक ऑलरेडी इंप्रेशन बना हुआ है, कैन यू सी दिस इंप्रेशन? ये जो हमारा एक इंप्रेशन ऑलरेडी बना हुआ है, उसी इंप्रेशन के साथ साथ हम इसको यहाँ तक ओपन करेंगे और बहुत ही हल्के हाथ से, उंगलियों के बड़े हल्के प्रेशर से ये काम करना है। सिर्फ इंप्रेशन के साथ साथ ही हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं, लाइक दैट। और यही फोल्ड हम इसके साथ भी कर रहे हैं अंदर की तरफ। हल्के हाथ से मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि पेपर फट ना जाए और कोई गलत इंप्रेशन ना क्रिएट हो जाए। यू नो, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू हियर। ओके, एंड वी हैव टू रिपीट द स्टेप। ये हमने यहाँ से इसको ऊपर की तरफ हम लेके गए और हमने ये फोल्ड किया और ये दूसरा वाला फोल्ड भी हमने किया। रिद्धिमा, डू यू हैव एनी डाउट्स हियर? टेल मी, व्हाट डाउट डू यू हैव? मतलब एक परफेक्ट शेप टाइप ऑफ बन पाता है और फोल्ड करने में पेपर कट सा जाता है। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, क्योंकि ये चीज़ होता ही है। ये कंफ्यूजन जब मैं भी बचपन में बना रहा था तो मुझे इस वाले स्टेप पे बहुत कंफ्यूजन आ रहा था। सी, मैं दोबारा बता दूं कि ये हमारा पहला, हमने वी हैड क्रिएटेड एन इम्प्रेशन आउट देयर। अब इस इम्प्रेशन के बाद हम लोग इसको यहाँ से ये ओपन करेंगे और इसी यहाँ जो लाइन बन गई है उस लाइन के साथ साथ हम इसे ओपन करेंगे और इस तरह से। हे सिद्धार्थ, यू आर हियर? यू वांट टू लर्न हाउ टू मेक अ बर्ड? Hey guys. हेलो। Hey guys. ओके, सो हमारे पास ये पोजीशन रेडी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे ये 2 लेग्स निकल आए हैं और हमारे पास 2 विंग्स भी निकल आए हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फर्दर इन लेग्स को थोड़ा सा शेप देने के लिए सेकेंड लेवल ऑफ स्टेप करने वाले हैं। ये हमारा सेकेंड लेवल स्टेप है एंड वी विल रिपीट द सेम स्टेप ऑन द अदर साइड एज वेल। सो आफ्टर यू मेक दीज स्टेप्स, थोड़ा सा आप इसको अपनी उंगलियों से पुश करें ताकि ये थोड़ा शेप परफेक्शन की तरफ जाए। एंड वी आर जस्ट कपल ऑफ स्टेप्स अहेड फ्रॉम मेकिंग दिस बर्ड। हम इसके टेल और बीक के लिए इसको इधर फोल्ड करें और इसको दूसरी तरफ भी फोल्ड कर लें ताकि एक इम्प्रेशन हम क्रिएट कर सकें। उसी तरीके से इसको दूसरे हिस्से में भी हम एक बार यहाँ से फोल्ड करेंगे और एक बार दूसरी तरफ से फोल्ड करेंगे। ओके, आर यू विथ मी रिद्धिमा? Yeah.
ओके, सो वी आर एट दिस लेवल। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने ये वाला साइड से हिस्सा खोला और इस स्टेप को ऊपर की तरफ हमने पहुंचा दिया। सेम वी विल रिपीट इन द केस ऑफ द अदर वन एज वेल। ओके, सो हियर वी आर रेडी एंड वी have 2 more steps. The second last step is to fold it this way and make the beak and open the wings. And there is a very interesting part. I think everybody will like it. If you see, you know, there is a spot here जहाँ से आप इसके अंदर हवा भर सकते हैं, you know, जैसे कि, और हवा भरते हुए हल्का से इसको खींचे और ये आपका बर्ड तैयार। लेट मी हेल्प यू विद दिस। ओके, सो वी हैव रिद्धिमा's bird also ready। ये हमने बीक बना लिया और ये हमने टेल भी रेडी कर लिया। आपको जस्ट इसके पीछे फूंक मारना है। यस प्लीज। Yes. Wow. Lovely. So let all the cranes fly together. Papa, what are these cranes called in Japan? Yes, that's a very good question you have asked, Riddhima. These cranes are called tsuru. T-S-R-U, tsuru. T is silent and tsuru in Japanese means cranes. So let the cranes fly. Thank you. Thank you for coming in our channel and we'll see you guys next time. Bye bye. Bye bye.